Hello everyone. So today we'll discuss about the buzzwords of Anacardium orientale, Anacardium orientale, Anthracynum, and Antimonium crude. So first we'll discuss about Anacardium. So the first line itself is very important. Sudden loss of memory. इसके बाद unfit for business. इसके बीच में जितनी चीज़ें लिखी हैं it is more or less related to loss of memory only. ठीक है, तो unfit for business and sudden loss of memory is given in Anacardium orientale. And then another thing is wickedness, seems bent on wickedness. See, the gist of Anacardium orientale is one thing only, कि he's forgetful, ठीक है, is wicked and lack of confidence. So there are phases of Anacardium orientale. So wickedness and then lack of confidence in himself and others is a really important line. Then he had two wills, one commanding him to do what the other forbids. Two wills, okay. Weakness of all the senses, every sense is weak. Think herself a demon, curses and swears. Demon is only given in Anacardium. Then warts on palm of hands. Natramure has warts on palms of hand. Back में we have thuja and dalkamara. Palm पे we have natramure, anacardium, also natrum carb. But the warts of natrum carbs are sore to touch. This is given in natramure only. ठीक है. फिर रिलेशनशिप में एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. इसमें बाकी और कोई तो बज़वर्ड नहीं है. दिस इज़ इट. ओके, so now we'll discuss about Anthracynum. See, Anthracynum is a nosode given by Herring only. So the line given by Herring is important here. To call a carbuncle is a surgical disease is the greatest absurdity. This often comes as a MCQ. Okay, and then cattle, horses, and sheep is given in Anthracynum epidemic, spleen disease of. This is one of the few symptoms given in Allen's keynote. Actually, it is the only symptom given for the animals, directly for the animals. Septic inflammation from absorption of pus or other deleterious substances. This is also deleterious substance is also a buzzword for Anthracynum. Again, this one liner, euphrasia in the terrible pains of cancer, carbuncle or erysipelas when arsenic or Anthracynum fails to relieve or ameliorate. ठीक है, यूजुअली MCQ में ये क्वेश्चन आ जाता है. कैंसर से रिलेटेड हमारे पास कॉन्डोरोंगो मेडिसिन है, ठीक है, फाइटोलक्का है, बहुत सारी पायरोजन है, बहुत सारी मेडिसिन है, बट यूफ्रेशिया पे जनरली हमारा ध्यान नहीं जाता है. सो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है. देन कम्स एंटीमोनियम क्रूड. एंटीमोनियम क्रूड मेडिसिन जो है, इसमें हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इसको कोल्ड वाटर से भी दिक्कत होती है, येट ओवर हीटिंग से भी दिक्कत होती है. ठीक है, इसको हॉट बेदिंग से आराम मिलता है, बट हॉट वेदर में इनको दिक्कत हो जाती है, सनबर्न्स में इनको दिक्कत हो जाती है. ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सिम्टम्स हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. जैसे ये लाइन है, सेंसिटिव टू द कोल्ड, एग्रेवेटेड आफ्टर टेकिंग कोल्ड. सेंसिटिव टू द कोल्ड में हमारे पास वी हैव सो मैनी मेडिसिन. ठीक है, therefore this line is a little bit confusing, but I just want to tell you कि सेंसिटिव टू द कोल्ड एयर मैक्सिमम जगह दिया हुआ है, सेंसिटिव टू द कोल्ड सिर्फ नहीं दिया हुआ. और सेंसिटिव टू द कोल्ड दिया भी है तो उसके आगे फिर एरप्शंस के बारे में बताया है, जो कि डलकामारा में दिया है. ठीक है, तो एक ये आइडेंटिफाइंग पॉइंट हो सकता है. देन सुसाइड बाय ड्राउनिंग इज़ एंटीमोनियम क्रूड और शूटिंग इज़ नाट्रम सल्फ. ओके, इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीटेड वर्सेस, ये भी एंटीमोनियम क्रूड है. सेंटिमेंटल मूड, एक्सटैटिक लव,
तो ये सारी चीज़ें आपको एंटीमोनियम क्रूड में मिलेंगी। नोस्ट्रिल्स एंड लेबियल कॉमिशर्स सोर, क्रैक्ड एंड क्रस्टी। कॉमिशर्स जो हैं वो आपको दो जगह मिलेंगे, एक जहाँ पे हेपर सेल्फ में दिया हुआ है कि क्रैक इन द मिडल लोअर मिडल लिप, लोअर लिप इन द मिडल ऑफ द लोअर लिप, ओके। तो वहाँ पे क्रैक इन कॉमिशर्स कोंडोरांगो में दिया हुआ है इन ब्रैकेट्स, बट नोस्ट्रिल और लेबियल कॉमिशर्स दोनों ही क्रैक हैं, दैट इज़ एंटीमोनियम क्रूड। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे है एलिमेंट्स फ्रॉम द सनबर्न। सनबर्न दो ही जगह पे दिया हुआ है, कैंथराइड्स में और एंटीमोनियम क्रूड में। बट कैंथराइड्स में क्या लिखा हुआ है, एक्सपोजर, एलिमेंट फ्रॉम एक्सपोजर टू सन रे इन ब्रैकेट सनबर्न। इसमें डायरेक्टली है एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न, ठीक है। और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री स्क्विला, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MCQ का, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम एंटीमोनियम क्रूड। अच्छा, इसमें मैं जो बोल रही थी आपको कि आफ्टर ईटिंग कोल्ड बादिंग से इनको दिक्कत होती है, ठीक है। फिर हीट ऑफ सन से भी दिक्कत होती है, एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हीट दोनों से ही, मर्क्यूरी जैसे इन लोगों को दिक्कत होती है। फिर इनको वार्म बाथ से आराम मिलता है और ओपन एयर से आराम मिलता है। कोल्ड इसका मतलब कि कोल्ड ये जल्दी पकड़ लेते हैं, बट फिर भी इनको ओपन एयर से और वार्म बाथ से आराम मिलता है, ठीक है।